پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ آج پوری قوم اپنی بہادر افواج کی جرأت اور دلیری کو سلام پیش کرتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر ایک گھنٹے پر محیط جاری رہنے والی فضائی جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور بے مثال شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ گزشتہ رات کے معرکے میں پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے۔ بھارت نے جارحیت کر کے فاش غلطی کی، اسے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، شہیدوں کے خون کا حساب لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، شاہینوں نے ایسا طوفان برپا کیا کہ بھارت چیخ اٹھا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا تکبر خاک ہوا، اللہ نے عظیم فتح دی۔ بھارتی حملے میں 80 طیارے شریک تھے، ہمارے عقاب جھپٹے اور 3 رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے۔ شاہینوں نے احتیاط سے کام لیا ورنہ 10 جہاز گرا سکتے تھے۔ پاک فوج نے تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دے۔ قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفense ایٹ ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ۔ افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف، اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ بھارت کے گزشتہ شب سویلین آبادی پر بزدلانہ اور افسوسناک حملے میں شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہادتوں اور زخمیوں کے بڑھنے کی بڑی وجہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جاری شدہ بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز ہیں۔ بھارت کے اس بزدلانہ حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ حملہ، یہ 6 اور 7 کی شب بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرتی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارت نے مساجد، سول آبادی اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، 6 مقامات پر 24 حملے کیے، 1 بچہ بھی شہید ہوا۔ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ عیاں ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا، صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، فضائیہ کے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا، سیز فائر کی خلاف ورزی پر بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا۔ بھارت تیاری کر لو، اب پاکستان کا جواب آنا ہے، جگہ، وقت اور طریقہ کار کا تعین پاکستان کرے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا بھارت نے تاریکی میں شہری علاقوں پر بزدلانہ حملہ کیا، خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی، مؤثر جواب دینے پر مسلح افواج کو شاباش۔ بزدل دشمن کا رات کی تاریکی میں حملہ، رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کو دندان شکن جواب ہے۔ مسلح افواج نے موقع پر ہی حساب چکتا کر دیا،
भारत के 5 तैयारे 7 ड्रोन मार गिराए। शाहीनों ने पलक झपकते दुश्मन के 5 तैयारों को धूल चटा दी। पाक फिजाइया के जज्बे के सामने जदीद टेक्नोलॉजी नाकाम। सरहदों पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की चेक पोस्टें मलिया मेट कर दी। भारी नुकसान पर बुज़दिल चौकियां छोड़कर भाग निकले। 4 मुकामात पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। तमाम तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दरसो तदरीस होगी। इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। भारतीय हमले के बाद 7 मई को तालीमी इदारे बंद रखे गए थे। इंटर पार्ट 2 का थियरी और मैट्रिक का प्रैक्टिकल का इम्तिहान मुलतवी हुआ। लाहौर बोर्ड मैट्रिक कंप्यूटर साइंस का भी इम्तिहान बाद में लेगा। फनी तालीम बोर्ड और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलतवी इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। दुश्मन भारत है, इसने हमेशा रात के अंधेरे में कार्रवाई की है, क्योंकि दिन के रोशनी में कार्रवाई करने के काबिल वो है नहीं। और जिन राफेल तैयारों पे वो मान कर रहे थे, अरबों डॉलर की उन्होंने डील की थी, उन राफेल तैयारों को जमीन पे बिल्डोज करके दिखाया हमारे जवानों ने। आज पूरी कौम हर जमात एक एक बच्चा भी पाकिस्तानी फौजी है और पाक फौज के साथ है। आसम मुनीर साहब, अब पाकिस्तान की सारी अवाम आपके साथ खड़ी है, खड़ी है जाना बजाना। रात को जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, जो कि इंडिया और खासकर मोदी इनका एक जो कि वतीरा है कि जब इनकी मकबूलियत कम होती है तो वो पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की कौम इस वक्त एक है और इंशाअल्लाह ताला अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है। इस तरह जो रात को शबखून मारा है, उस पर सारी हमारी कौम शीशा पिलाई दीवार की तरह यकजा है और हम अवाम के साथ धरती माँ के लिए हम अपना खून का आखिरी कतरा बहाएंगे और इस पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। शहर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैलियां। MNA सैफुल मलूक खोखर की ज़ेर क़यादत रैली। मलिक शहबाज खोखर, बिलाल जुल्फ़कार, मलिक अदनान जुल्फ़कार हम कदम हुए। इंजीनियर स्टोर में फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शहबाज खोखर, मलिक मुस्तनसर, राना साकिब, हाशिम भुट्टा, मुअज़्ज़म अली, तारिक गोंदल की शिरकत। MPA गजाली सलीम भट्ट की ज़ेर क़यादत बादामी बाग में रैली का इनेकाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पाक फौज से यकजहती। मियां खालिद महमूद, शोएब सिद्दीकी, जमान नसीब हम कदम हुए। अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद भचर और सरदार लतीफ़ खोसा भी हम आवाज़। पख्तून मोहम्मद लोया जिरगा की पाक फौज के हक में रैली। सरफराज खान मोहम्मद, जावेद मोहम्मद और अकबर खान की शिरकत। महमूद साफ़ी, जवाद खान, मौलाना रहमतुल्लाह भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सर नवाज, जाफर चौधरी समेत दीगर एहलकारों की शिरकत। ने उस कौम को ललकारा है जो सर पे कफन बांध के खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की अवाम, पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे है। बुज़दिलाना हरकत की है जो उन्होंने हमारे वाटर डैम के ऊपर हमला किया है। उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है। पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ लोग अब इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या एलामिया जारी करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाक फौज को ये इजाज़त देनी चाहिए कि इंडिया को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको जो है ना रिस्पॉन्ड किया जाए। तू सुन ले, अब तूने आगाज किया है, इंशाल्लाह इसका जो एंड है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी फौज पे पहले भी फख्र था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और जिस तरह भी होगा हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 3 घंटे नहीं निकाल सके ये और सफेद झंडा लहरा दिया कि हमें माफ कर दिया जाए। ये इनकी बुज़दिलाना हिकमत अमली है। भाई हमारे जो पाक फौज के जवान हैं, जो पायलट हैं, वो जज्बा कहाँ से लाओगे? राफेल चाहे 100 ले लो तुम। पाक फौज जिंदाबाद। ताजिर बरादरी यक जुबान। सदर लाहौर चैम्बर में अबू जरशाद की ज़ेर क़यादत रैली। मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों के ताजिर ओहदेदार शरीक हुए। शालम मार्केट में सर्कुलर रोड मार्केट्स बोर्ड की रैली। आदिल, मुनीर, ख्वाजा इमरान, शहजाद खान हम कदम हुए। सदर हाल रोड बाबर महमूद कहते हैं पाक फौज के साथ खड़े हैं।
सदर मिंटगुमरी रोड एजाज मुश्ताक, वकार अली और दीगर का भी खिताब। मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि कौम को बहादुर फौज पर फख्र है। मरकजी सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद मलिक खालिद की जेर सदारत इजलास। कलीम अहमद, मलिक मोहम्मद कजाफी, सैयद मुबशर शाह और दीगर का फौज से यकजहती का इजहार। पूरी कौम, सिविल सोसाइटी, आर्मी और पाकिस्तान के वकला एक पेज पर हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है जो भी पाकिस्तानी इक़दाम करेंगे हम पूरी कौम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम एक मुट्ठी की तरह इंडिया को जवाब देंगे और हमने इसका बदला ज़रूर लेना है। इंडिया को जो है ना माफ़ी नहीं करनी है, उनकी इस बदमाशी को ख़त्म करना है। उसने रात की तारीखी में जो बुज़दिलाना हमला किया है उसका हमारी आर्मेड फोर्सेस ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है और पूरी पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम अपनी आर्मेड फोर्सेस के साथ खड़ी है। इंडिया ने जो रात जो है पाकिस्तान पे हमला किया है, हम तमाम मसालिक के उलमा जो हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इस्लाम जो है हमें इस बात का दर्स देता है कि इत्तेहाद रखो, सुलह और रवादारी का दर्स देता है, लेकिन जब सरहद क्रॉस हो जाए तो फिर कहता है वह आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि अपनी क़ुव्वत और ताकत जो है उसे तैयार रखो। तो हम सब जो हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि वो सरहदों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हम मिंबर व मेहराब में उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ है और अल्लाह को ये कभी भी पसंद नहीं होगा कि इस पर किसी की भी किस्म की कोई आफत और मुसीबत आ जाए, क्योंकि अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ है और इसको बनाने वाला बानी जो है मोहम्मद और अली है, तो अल्लाह को ये दो नाम भी बहुत महबूब है। उलमा और वकला बरादरी भी पाक फौज के शाना बशाना। लाहौर हाई कोर्ट बार का हंगामी इजलास, भारतीय जारहियत की मजम्मत। वकला ने कहा भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज काबिल तारीफ है। उलमाए कराम भी पाक फौज की हमायत में बोल पड़े। डॉक्टर्स की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार और दीगर की शिरकत। लिबर्टी में बच्चों और खवातीन का पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए धर्मपुरा में रैली। मियामीर मंजल से इन्फेंट्री रोड तक मार्च किया। पीर सैयद हारून अली गिलानी की शिरकत। मोदी का पुतला नजर आतिश। लाहौर एयरपोर्ट से मखसूस फ्लाइट ऑपरेशन जारी। PIA की हज परवाज 7221 मदीना रवाना। कराची से आने वाली परवाज PK304 को लैंडिंग की इजाजत दी गई। मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए दोबारा बंद है। रूट J139, J165 और J186 रूट बंद कर दिए गए। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। डॉक्टर्स और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। रेस्क्यू एहलकारों को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर हड़ताल खत्म है, डॉक्टर्स ने तिबी मोर्चे संभाल लिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने इंडोर आउटडोर में काम शुरू कर दिया। मामूल के ऑपरेशन की सहूलत बहाल। YDA रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब का ऐलान। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल का इजलास सदर VC प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वाघा बॉर्डर का दौरा। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। कामरान टेसोरी ने कहा कि पाक फजाइया ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। सफारती सतह पर भी पाकिस्तान की जीत हुई। मोदी सरकार में वारंट देना चाहना कि राती तरीके में तू जो हमला करवाया है ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਿਆਰੇ ਕੀ तेरे 500, 5000, 5 लाख भी होंगे तो पाकिस्तानी फौज जड़ी है उसका जवाब देने वास्ते तैयार है। वो कल रात के अंधेरे में मजहबी मकामात पे हमला किया है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि सिख मजहब में यही सिखाया गया है, गुरुद्वारा होए, मंदिर होए, मस्जिद होए, चर्च होए, इबादत गाह दे होते हमला करना या उहदी बेहुरमती करना, ये कोई मजहब कोई इंसानियत ये इजाज़त नहीं दे रही है। भारत की जंगी जारहियत और बुज़दिलाना इक़दाम। लाहौर की सिख बरादरी का भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। बोले पाकिस्तान की सालमियत की खातिर बच्चा बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिख कम्युनिटी अपनी बहादुर फौज के साथ है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली गिलानी और हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। कहा पहलगाम से शुरू होने वाला किस्सा अब इख्तिताम की जानिब गामज़न है। भारत को अपने किए का जवाब देना होगा।
जमात इस्लामी का 9 मई को यौम आज़म मनाने का ऐलान। जुमे को भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। उधर सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। एजाजुल्लाह खान, सैयद वकास जाफरी समेत दीगर की शिरकत। अल खिदमत का मरकजी कंट्रोल रूम लाहौर में कायम कर दिया गया।